ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਈ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ V ਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੱਭੀ ਦਾ ਡੈਲਟਾ V ਲੱਭਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਆ Q, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰਜ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੂਰੀ ਲਿਖਤੀ R। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ? Q/R ਦਾ ਸਕੇਅਰ। K ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1/4πε0 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ? KQ/R ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ? ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, V ਤੇ V ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਣਾ ਸੀ? KQ/R। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, R ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ V ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ? ਸਕੇਲਰ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ? ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂ, E/V ਕੀ ਬਣੂਗਾ? E ਦੀ ਵੈਲਿਊ KQ/R ਦਾ ਸਕੇਅਰ, V ਦੀ ਵੈਲਿਊ KQ/R। K ਨਾਲ K ਕੈਂਸਲ, Q ਨਾਲ Q ਕੈਂਸਲ, ਇੱਕ R ਨਾਲ ਇੱਕ R ਕੈਂਸਲ। ਕੀ ਬਚਿਆ ਇੱਥੇ? ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, 1/R ਬਚਿਆ। 1/R ਬਚਿਆ। R ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਈਏ, E/V 1/R ਦੇ ਬਰਾਬਰ। R ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ V ਇੱਧਰ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ V ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ? E/R। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ? ਸਕੇਲਰ। V = ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਡੈਲਟਾ V = E/ΔR। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਾਈਦਾ? ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਆ V = ER ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, V = ER ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਮਝਾਤਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ -E.ΔR। ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਇੰਡੀਕੇਟ, ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਇੰਡੀਕੇਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ always decreases in the direction of electric field। ਆ ਲਾਈਨ ਵੇਖਿਓ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਮੀਟਰ, ਫਿਰ 1 ਮੀਟਰ, ਫਿਰ 1 ਮੀਟਰ, ਫਿਰ 1 ਮੀਟਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ? KQ/R। ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? KQ/R ਕਿੰਨਾ? 1 ਮੀਟਰ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? KQ ਤੇ R ਕਿੰਨਾ? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 1 + 1 2 ਮੀਟਰ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ?
के क्यू आर किन्ना इस जगह तो एक एक ते एक 3 मीटर। क्लीयर। हुण देखो जिद्दां जिद्दां अगे वधण डे इत्थे पोटैंशियल इन्ना, इस जगह ते पोटैंशियल इन्ना, इस जगह ते पोटैंशियल इन्ना घटन डिया ना। पहलों 1 आ डिवीजन विच, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। मान लो उपर 100 हुंदा 100/1 इत्थे किन्ना आ जाना ही 100, उपर 100 हुंदा 100/2 किन्ना आ जाना ही 50, उपर 100 हुंदा 100/3 किन्ना आ जाना 33.33। पोटैंशियल घटन डिया ना 100 तो 50, 50 तो इन्ना, तो फिर अगे होर घट जाना। तो आ लाइन समझ लग जाती ना। पोटैंशियल जिहड़ा वा ये की होऊगा, घटूगा इन द डायरैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। तां करके इत्थे किहड़ा साइन आउंदा माइनस दा, लगदा पता? ठीक है ना। इन्नियां चीज़ां एक बार नोट करो। पर आ हैडिंग नूं आपां प्रॉपरली किद्दां करना नैक्सट विच दसदा। ਇਹੋ ड्राइव करना हुण आपां प्रॉपर वेज करदे इनू। आ सिर्फ समझण लई है, इदां एग्जाम च ना करियो जे डेरीवेशन पुछदे ने। देखो ये 2 केस बनाने आ। केस फर्स्ट की आ, वैन इलैक्ट्रिक फील्ड, ई सिंबल ही पा देना। ई का मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड जे वैन इलैक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनीफॉर्म, यूनीफॉर्म एक बनूंगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2 की आना वा, वैन इलैक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉन यूनीफॉर्म, वैन इलैक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉन यूनीफॉर्म। देखियो यूनीफॉर्म का मतलब हुंदा वा हर एक जगह ते एक समान। जिद्दां जेकर इत्थे वेखो 4 लाइनां, इत्थे भी 4 लाइनां, इन्ने डिस्टेंस से 4 लाइनां, किते वध घट नहीं, हर एक जगह ते इलैक्ट्रिक फील्ड एक समान। ये ते बन गई यूनीफॉर्म। नॉन यूनीफॉर्म का मतलब हुंदा वा किते ज़्यादा किते घट। जिद्दां तुसीं इन्ना क डिस्टेंस वेखो 3 लाइनां, फिर इन्ना क वेखो सिर्फ 1 लाइन, फिर इन्ना क वेखो 1 लाइन, फिर इन्ना क वेखो 1 लाइन, कदी 3 कदी 1। किते संघणियां लाइनां होणगियां, किते विरलियां हो जांदियां। ये किहड़ियां हुंदियां? नॉन यूनीफॉर्म। इन्ना क्लीयर हुंदा। हुण आपां आ चीज़ ड्राइव करनी आ ते सानू पता वा जिहड़ा हुंदा चेंज इन पोटैंशियल, चेंज इन पोटैंशियल वो किहदे इक्वल हुंदा? नैगेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ओवर चार्ज। चार्ज आपां कोई रख लेने आ डी क्यू, क्यू रख लेने आ। इत्थे आ देखियो आ पोजीशन हैगी आ फस्ट पोजीशन, आ पोजीशन हैगी आ सैकेंड पोजीशन। हुण इत्थे कोई चार्ज पिया वा क्यू, क्यू चार्ज पिया वा। ये चार्ज जिहड़ा वा इहदे ते किहड़ी फोर्स लगदी पई आ? क्यू ई। इलैक्ट्रिकल फोर्स हुंदी ना, आ फोर्स लगदी पई क्यू ई। आपां इहनूं खिच के इधर लिआंदा, आपां इहनूं किन्ना तोरिया? डेल्टा आर। सैकेंड तो कित्थे लैके आए आपां? 1 ते आपां खिच के लिआंदा। फोर्स किन्ने लाई? एक्सटर्नल एजेंट ने। फिर देखियो ये चीज़ां ध्यान ना, इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन से ते इत्थे कोई ना कोई चार्ज पिया वा क्यू। इहदे अल ध्यान ना दो, जे कोई ना कोई चार्ज पिया वा क्यू। इस चार्ज ते किहड़ी फोर्स लगदी पई? इहनूं कोई उधर नूं धक्का मारदा पिया वा। किहड़ी फोर्स लगन डी आ? क्यू ई। आ फोर्स लगदी पई। आपां इस चार्ज नूं इधर नूं खिसकाया, किन्ना खिच के लैके आंदा? डेल्टा आर। डेल्टा आर ते किहड़ी फोर्स लाई? एक्सटर्नली लाई आपां एफ एक्सटर्नल। कोई ना कोई वर्क होया, वर्क दा की फार्मूला? वर्क एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जिहड़ा हुंदा ये किहदे इक्वल हुंदा? फोर्स एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इंटू डिसप्लेसमेंट।
इंटू डिसप्लेसमेंट आ चीज़ लिखी। हुण ए वाली फोर्स ते ए वाली फोर्स का मैगनीट्यूड सेम बट डायरैक्शन ओपोजिट है। आ फोर्स ते आ फोर्स ਜਿਹੜੀਆਂ एक बराबर होणगियां पर इन्हां दी दिशा ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ। इस फोर्स की जगह ते की लिख सकते हैं आपां एफ एक्सटर्नल किहदे इक्वल आ क्यू ई दे बट डायरैक्शन ਵੱਖਰੀ आ इधर लगदी पई दूजी परले बन्ने डायरैक्शन ਵੱਖਰੀ ते इत्थे किहड़ा साइन पा देना माइनस दा। इत्थे की भरांगे आपां माइनस क्यू ई ते डिसप्लेसमेंट किन्नी होई डेल्टा आर। डेल्टा आर आ पूरियां चीज़ां इत्थे भर दी इत्थे आपां माइनस ला चुके फिर इत्थे नहीं लाउणा। की आऊगा की आउणा माइनस क्यू ई नाल किहड़ी चीज़ आ डेल्टा आर ते हेठां की आ क्यू डेल्टा वी। क्यू ना क्यू कैंसल आ पूरा रिलेशन बन गया। डेल्टा वी किहदे इक्वल आ गया माइनस ई डॉट डेल्टा आर हो जाता क्लीयर। नैगेटिव साइन का मतलब वो ही आ जो मैं पहलों दस चुकिया वा पोटेंशियल घटदा इन डायरैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। जे ये आले दुआले तुम मैगनीट्यूड पा दोगे ना एक ये इक्वल आ जाना इत्थे माइनस नहीं लाना जे इत्थे मैगनीट्यूड पा देने ई डॉट डेल्टा आर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आ काफ़ी नमैरिकल इन्हां सॉल्व होणगे ठीक है याद रहे। जेकर हैगियां नॉन यूनीफॉर्म सारा कुछ उदा ही होया फस्ट पोजीशन तो सैकेंड पोजीशन जो भी आ इत्थे चार्ज हैगा क्यू नू इस जगह तो इस जगह तक लैके जाना। एदा पोजीशन वैक्टर हैगा R1 पोजीशन मैंशन की एदा R2 बस सिंपल ही आ तुसीं की करना डेल्टा वी नू की लिख देना डी वी ई डॉट डी आर ते इंटीग्रेशन का साइन पा देना R1 तो लैके R2 तक ठीक है। इन्ना फार्मूला याद रख लो ये इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं है सब तो मेन यहो ही है बस इन्ना ख्याल रखियो तुहानूं क्वेश्चन च यूनीफॉर्म ही आना। जेकर किते नॉन यूनीफॉर्म आ जाता वा तुसीं इहदे नाल की पा देना इंटीग्रेट ठीक है R1 तो लैके R2 तक ठीक नोट कर लो। एक नोट के अंडर लिख दें चीज़ फिर नमैरिकल कर दें इन्होंने रिलेटेड। आ भी चीज़ देखो ध्यान ना जेकर सानू इलैक्ट्रिक फील्ड दिती आ EX I कैप करके EY J कैप करके कार्टीजियन कोऑर्डिनेट दिते ने EZ K कैप करके इस तरह सानू डिसप्लेसमेंट DR ए गिवन आ DXI कैप करके DY J कैप करके ते DZ K कैप करके एक केड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम आ कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जेकर दिता वा फिर देखियो पोटेंशियल कितना पता करनी V का की फार्मूला हुंदा E डॉट DR इस तरह ही हुंदा ना आपां हुण इहो ते चीज़ां दो केसे च पढ़ियां डेल्टा वी किहदे बराबर हुंदा ई जिद्दां कह लो डी वी किहदे बराबर हुंदा ई डॉट डी आर। ई दी जगह ते किन्ना भरीए ई एक्स आई कैप ई वाई जी कैप ई जेड के कैप। डी आर दी जगह ते किन्ना भरीए डी एक्स आई कैप डी वाई जी कैप ते डी जेड के कैप आ चीज़ां भरतियां आ डी वी उस तरह। आप +1 की सीखते हैं आ प्रोडक्ट सीखते हैं ना आई कैप सिर्फ आई कैप ना ही हुंदा आई कैप जे कैप ना डॉट प्रोडक्ट नहीं हो सकती आई कैप दी के कैप ना नहीं हो सकती
जे नहीं पता तो इत्थे दस दिना वा आई कैप डॉट आई कैप किन्ना हुंदा 1, आई कैप डॉट जे कैप किन्ना हुंदा 0, आई कैप डॉट के कैप किन्ना हुंदा 0, जे कैप डॉट जे कैप किन्ना हुंदा 1, जे कैप डॉट आई कैप 0, जे कैप डॉट के कैप 0, के कैप डॉट के कैप हुंदा 1, के कैप डॉट आई कैप 0, के कैप डॉट जे कैप 0। ये तो हुंदा जे डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो जेकर क्रॉस प्रोडक्ट होवे आई क्रॉस आई हुंदा जे 0, ठीक है। उन्ना और इन्नी डिटेल वाल ना जाइए कि यही लिखी जाइए, सिर्फ इन्ना याद रख लो जेडे इक्को जिक्के आ ना उन्हां दा डॉट प्रोडक्ट होना, दूजियां दा ओपोजिट दा डॉट प्रोडक्ट की होना 0, ठीक है। आई कैप ने सिर्फ आई कैप ना ही मल्टीप्लाई होना, आई कैप जो जे कैप ना होगा 0 हो जाना, की आ जाना इत्थे ई एक्स, आई कैप वाला सिर्फ आई कैप नाल, ई एक्स के नाल की आ जाना डी एक्स, फिर प्लस ई वाई दे नाल की आ जाना डी वाई, फिर प्लस ई जैड दे नाल की आ जाना डी जैड। आई कैप ना 1 हो गया, जे कैप ना 1 हो गया, के कैप ना 1 हो गया। इधर डी वाई नू मैं की लिख सकदा, डी वी नू आपां लिख दिन्ने आ, इत्थे डी वी रहन दिन्ना, आ चीज़ आ गई। हुण आपां इनू इधर इक्वेट करिए, इनू भी एक्स वाई जैड च लिख सकते हैं आपां, नहीं लोड़ ही नहीं। आ देखियो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स, माइनस अंदर जाऊगा, माइनस ई वाई डी वाई, माइनस ई जैड ते डी जैड। एक बार इनू ये इक्वल लिखना, डी वी के इक्वल आ जाऊगा माइनस ई एक्स ते डी एक्स, फिर डी वी के इक्वल आ जाऊगा माइनस ई वाई ते डी वाई, डी वी के इक्वल आ गया माइनस ई जैड ते डी जैड। इन्नियां चीज़ां आ गईयां। आ सैपरेट क्यों लिखे आ, देखो आ जिहड़ा डी वा ते आ डी वा, ये प्योर डिफरेंशिएशन नहीं, ये हुंदी पार्शियल डिफरेंशिएशन। इन्हां नूं सैपरेट मैं क्यों लिखता वा, क्योंकि इत्थे किहड़ी चीज़ होण लगी आ, पार्शियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन च डी नहीं हुंदा, इस तरह हुंदा जे करली वी अपॉन आ इधर आन के डिवाइड हो गया करली एक्स इज इक्वल टू माइनस ई एक्स, यदी वैल्यू आ गई। डी नहीं हुंदा, करली वी करल CURL। इस तुहानू एक क्वेश्चन कर लिया, तुहानू पूरा क्लीयर हो जाना। करल वी अपॉन की आ जाऊगा करल वाई माइनस ई वाई, एक वैल्यू आ गई, करल वी करल जैड माइनस ई जैड। जिथे मैं करल बोलता पाया ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ना कि प्रॉपर डिफरेंशिएशन, ठीक है। आ जो भी नोट के अंडर लिखिया, जे ये नहीं समझ लगता आ 3 चीज़ां याद रख लो। इलैक्ट्रिक फील्ड इन द डायरैक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो आ फार्मूला होगा। इलैक्ट्रिक फील्ड इन द डायरैक्शन ऑफ वाई एक्सिस आ चीज़ होगी, इलैक्ट्रिक फील्ड इन द डायरैक्शन ऑफ जैड एक्सिस आ चीज़ होगी। तो इन्हां तिन्नां नूं अप्लाई किद्दां करना, बार बार आ चीज़ आपां हुण नहीं करनी, नमैरिकल आऊगा सीधे आ फार्मूले लाने, ठीक है। देखो इन्हां नूं अप्लाई करिए, जो भी आपां पढ़िया, ये यूनीफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड जी केस नंबर 1 वाला वेख लो। इन्हां नूं किद्दां सॉल्व करांगे आपां। चेंज इन पोटेंशियल पता करना, आपां VB माइनस VA पता करना, इहदा मीनिंग आ आपां डेल्टा V पता करना। चेंज इन पोटेंशियल ते डेल्टा V का फार्मूला की हुंदा माइनस E डॉट डेल्टा R। तो जेकर मैं आ नैगेटिव का मतलब आ पोटेंशियल का घटना, ठीक है। जे मैं नैगेटिव हटा दा तो इत्थे किहड़ी चीज़ पा दूंगा, मैगनीट्यूड। तुसीं आ फार्मूला पूरा लर्न कर लियो, ठीक है। डेल्टा V किहदे इक्वल हुंदा, E डॉट डेल्टा R दे।
ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣ ਆਏ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਦੋਂ ਹਟਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਲਾਈਦਾ cos ਥੀਟਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਡਾਟ ਹਟਾਉਣੀ ਨਾ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾ ਦੇਣਾ cos ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਆ ਜੋ B ਤੇ A ਕਿੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਵੇਖੋ ਆ A ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ B ਹੋ ਗਈ। B ਤੇ A ਆ ਦੋਨੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ 1 ਮੀਟਰ। ਸਾਨੂੰ ਡੈਲਟਾ R ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 1 ਮੀਟਰ। ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ AB ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ BC ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਣੀ 20। E ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰਤਾ 20। ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਰਹਿ ਗਿਆ cos ਥੀਟਾ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। cos ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ E ਤੇ R ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਹੈਗਾ ਡੈਲਟਾ R, ਆ ਡੈਲਟਾ R ਜੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ E ਵਾ, E ਵੀ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਡੈਲਟਾ R ਵੀ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਐਰੋ ਸੇਮ ਪੈਰਲਲ ਤੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ 0 ਡਿਗਰੀ। ਦੇਖੋ ਡੈਲਟਾ R ਵੀ ਇੱਧਰ E ਵੀ ਇੱਧਰ ਪੈਰਲਲ, ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ 0 ਡਿਗਰੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਦਾਂਗੇ 0 ਡਿਗਰੀ। cos 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 21 ਜਾਂ 20। ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20। ਦੱਸੋ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ 3 ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਪਾਰਟ ਪਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇਖਿਓ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ VA - VD, ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਡੈਲਟਾ V = E ਡਾਟ ਡੈਲਟਾ R। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਡਾਟ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਊਗਾ cos ਥੀਟਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ E ਡੈਲਟਾ R ਤੇ ਥੀਟਾ। ਵੇਖੋ A ਤੇ D ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੇ ਆ A ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ D ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ R ਕਿੰਨਾ 1 ਮੀਟਰ, ਡੈਲਟਾ R ਕਿੰਨਾ ਭਰਤਾ 1 ਮੀਟਰ ਤੇ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਮ, ਕਿੰਨੀ 20 ਭਰਤੀ। ਰਹਿ ਗਿਆ cos ਤੇ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਡੈਲਟਾ R ਹੈਗਾ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਤੇ E ਹੈਗਾ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ। ਡੈਲਟਾ R ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਤੇ E ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਇਧਰ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ। A ਤੋਂ D ਤੱਕ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈਗੀ ਆ ਵੇਖੋ ਪਰੇ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ। ਇੱਥੇ 90 ਭਰੋਗੇ cos 90 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 0 ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ? VD - VC, ਥਰਡ VD - VC ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਜੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ E ਡਾਟ ਡੈਲਟਾ R। ਡਾਟ ਹਟੂਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਣੀ cos ਥੀਟਾ। ਡਾਟ ਹਟਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ cos ਥੀਟਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ E ਚਾਹੀਦਾ, E ਤੇ ਪੂਰਾ ਫਿਕਸ ਆ 20। ਡੈਲਟਾ R D ਤੇ C ਵੱਲ ਪਹੁੰਚੋ, ਆ D ਤੇ ਆ C। ਡੈਲਟਾ R ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ 1 ਮੀਟਰ। cos ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਪਏ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ D ਤੇ C ਵਾਲਾ। ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। 1 ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। B ਹੈਗਾ ਜੇ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ A ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਜਾਣਾ, A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਐਰੋ ਸਹੀ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਈਏ A ਤੋਂ D ਤੱਕ। A ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, A ਤੋਂ D ਨਹੀਂ, ਆ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਦੂਜਾ ਲੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਦਾ ਲੋ ਟੂ ਹਾਈ। D ਤੋਂ A ਐਰੋ ਪੁੱਠਾ ਪੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟ ਆ। ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ 90 ਹੀ ਆ, ਆਉਣਾ ਕਿੰਨਾ 90। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਆ ਲੋ। ਆਪਾਂ C ਤੋਂ D ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ C ਤੋਂ D, ਐਰੋ ਪੁੱਠਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ C ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ D ਤੱਕ। ਫਿਰ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਐਰੋ ਇੱਧਰ ਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਐਰੋ ਇੱਧਰ ਆ। ਇੱਕ ਐਰੋ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਡੈਲਟਾ R ਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਐਰੋ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੇ cos 180 ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ
ये हुंदा -1 cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री 90 180 cos 0 1 90 0 cos 180 डिग्री cos 90 प्लस 90 sin 90 ਹੁੰਦਾ 1 -1 आ गया -1 इत्थे आऊगा 21 -1 ਇਹਦਾ आंसर आया -20 जे मॉड ना पाने फिर आंसर कितना आना है -20 मॉडूलस पा दोगे तो आंसर फिर कितना आ गया 20 हुंदा क्लीयर ठीक है। लास्ट पार्ट रह गया VC माइनस VA, VC माइनस VA फोर्थ पार्ट VC माइनस VA आपां डेल्टा V पता करना E डॉट डेल्टा R डॉट हटा दोगे तो केड़ा cos थीटा आ जाना E किन्ना 20। हुण पहुंचो C ते A ते आ हैगा जे हाई पोटेंशियल A हैगा लो पोटेंशियल लो टू हाई आ वेखो इधर नू लो टू हाई इधर नू एरो आना जी हेठां नू ते आ एंगल किन्ना होगा फिर हुण आड़ा एंगल चाहिदा ते आड़ी लेंथ चाहिदी ए तो आ स्केयर आ ना स्केयर आ ते स्केयर दा डायगनल किन्ना हुंदा √2 याद रखो पाइथागोरस थ्योरम ला के इत्थे √2 आउंदा जे लग जूगा पता स्केयर दा डायगनल किन्ना हुंदा √2 ए तो लैके C तक दा डेल्टा R किन्ना √2 जे नहीं पता लगदा आ वेखियो A D ते C आ 1 मीटर हाइपोटेनियस ही लभना हाइपोटेनियस की हुंदा परपेंडिकुलर दा स्केयर बेस दा स्केयर ते रूट परपेंडिकुलर 1 ते 1 2 हो गया ना ठीक है। डेल्टा R किन्ना भरना √2 cos थीटा थीटा किन्ना भरोगे टोटल स्केयर दा एंगल हुंदा 90 डिग्री ते आड़ा एंगल किन्ना होगा 45 डिग्री इत्थे 45 डिग्री भरता cos 45 किन्ना हुंदा 1/√2 20 आंसर आ गया सारिਆਂ ਦਾ 20 नहीं एक दा 0 हुंदा क्लीयर। आ भी दो पार्ट देख लियो फर्स्ट की आ VA माइनस VB डेल्टा V पता करना E डॉट डेल्टा R डॉट हटूगा तो केड़ा एंगल आना cos थीटा E की जगह ते इत्थे मैं E लिखिया ही नहीं 20 वोल्ट पर मीटर इत्थे E हैगा जे 20 वोल्ट पर मीटर इत्थे 20 भरता डेल्टा R 2 मीटर भरता थीटा इत्थे 60 ही होना सारिਆਂ ਦਾ ये आ गया 40 cos 60 किन्ना हुंदा वा 1/2 cos 60 1/2 ही होना 20 आ गया 20 वोल्ट ठीक। तो लास्ट पार्ट रह गया VB माइनस VC इत्थे cos 0 होना जी आ इधर नूं आ भी इधर नूं ते 40 आ जाना हुण ते पता लग ही जाना चाहिए। आ देख लो इत्थे आ एंगल आ पता ना 60 भरिया ते आ एंगल इत्थे 0 क्यों भरिया BC की गल हुंदी पई ना इधरले बन्ने दी ते आ भी इलैक्ट्रिक फील्ड भी तो इधर ही आ जां एक चीज़ होर देखिए आ हाई आ लो वा इधर नूं आना cos 180 आना cos 180 किन्ना हुंदा -1 नहीं 180 किन्ना होगा cos 180 इत्थे किन्ना भरना है आपां 180 किन्ना हुंदा -1 ते ये आ गया -40 आना है ठीक है। अपनी एक टाइप की नूमेरिकल तो होगी बाकी कल देखांगे।